صدقہ کے لیے اٹھائیں، آپ مزارات کے لیے اٹھائیں، آپ اولیاء کے لیے اٹھائیں، آپ اپنی رسومات کے لیے اٹھائیں جو شرعی رسومات ہیں. ہے شرعی رسومات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. آپ یاد رکھ لیں کہ یہ سارے کے سارے عقیدے. آپ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نبی ہوں. ایسا دور چل رہا ہے نا. دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی نے ایسا کیا. اس کے بعد میں اسی کی نسل سے اب اس کا چیلا یونس گوہرشاہی ہے. وہ کہتا ہے کہ امام مہدی کون ہے؟ ریاض احمد گوہرشاہی امام مہدی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. مسئلہ اب اس کے بعد سارا کچھ مرزا کے اوپر دیا ہے. یاد رکھیں دوستو، میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. کوئی بھی مخالفت کرے، تم نے تو مخالفت اس کی نہیں ہوئی. اچھا یہ دیکھو کی مخالفتیں ہوئی، رسول اللہ کی مخالفت کی گئی. اگر آج پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ مخالفت ان کے حق پر ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ آدمی حق پر، وہ آدمی حق پر. ادھر سے تو سنی نظر نہیں آتا تھا. ہمارے پاس سنی اور تمہارے قربان جایا جائے گا. جو کام کا نہیں آتا ہے کام کو رکھنے سے ہو، اور ایک بھی کام پکڑو تو صحیح ہے. جو سامنے آیا ان کے چلنے کے انداز، ان کے بتانے کے اندازوں کو لینا چاہیے. حقیقت یہ ہے انہی بزرگوں کی وجہ سے ہماری دنیا بھر. پروفیسر صاحب کی عمر میں بے شمار برکتیں صحت و سلامتی سے عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله. زینب ایجوکیشن تو سلامت رہے، تجھ پہ خلاق اکبر کی رحمت رہے، تجھ پہ خلاق اکبر کی رحمت رہے. روز محشر تلک تیری شہرت رہے، تیری عزت رہے، تیری عظمت رہے، تیری عزت رہے، تیری عظمت رہے. کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں، کیوں نہ تیرے لیے ہم دعائیں کریں. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور والی اللہ جاتی خامد صاحب، ورلڈ اسلامک پیر طریقت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرفی جیلانی سجاد نشین آجا شریف ان کی گلپشیر درود شریف پڑھے بھی. ان کی بارگاہ میں گلپوشی پیش کی جا رہی ہے. سیدہ زینب ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام محترم الحاج حاجی عتیق احمد چشتی کے تعاون سے اور تمام مشائخ، تمام سادات، علماء کرام، مفتیان اعظام اور آپ تمام سنی مسلمان پردہ نشین خواتین حضرات جشن غوث الورا غوث اعظم کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. شاید کہ عتیق بھائی کے لیے یہ پہلا اتفاق ہوگا کہ کسی ایک خاص مقرر کو 4 مہینے میں 3 بار بلا چکے ہیں. میں محرم میں بھی آیا، 12ویں میں بھی آیا
اور غوث اعظم نے مجھے 11ویں بھی بلا لیا. سبحان اللہ. میں جو پردہ نشین خواتین ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ اپنے بچوں کو خاموش رکھیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں ایک اچھی گفتگو کرنے کا ذہن بنے اور موڈ بنے. میں بالکل الگ طریقے سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. پہلے 5-10 منٹ آپ کو اپنے پورے ذہن کو زور دینا پڑتا ہے, تب جا کر کے میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ کی پوری توجہ ہے؟ بولیے. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی سماعتوں کے حوالے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اور مشائخ سادات کرام کی خصوصی توجہ کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ. اگر سمجھ میں بھی نہ آئے تو کم سے کم بول لیجیے. تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے, تو بھی زندہ ہے, تیرے چاہنے والے زندہ. تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ تو بھی زندہ ہے, تیرے چاہنے والے زندہ. اور آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ. آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ. ارے مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ. میں شعر کو سمجھا دوں. پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 1000 سال. کتنے سال؟ 1000 سال. غریب نواز کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 900-950 سال. محبوب الہی 850 سال. صابر کلیری 800 سال. مختوم سمنا 750 سال. یہی اس لیے ہے نا جب وہ تھے بظاہر تبھی تو وہ عبادت کرتے تھے, تبھی تو اللہ کو یاد کرتے تھے, تبھی تو نماز پڑھتے تھے, تبھی تو روزہ رکھتے تھے, تبھی تو حج کرنے گئے, تبھی تو زکوٰۃ دیتے, تبھی تو اچھے اعمال کرتے, تبھی تو نیک کام کرتے. لیکن کب؟ جب وہ 1000 سال پہلے ظاہری طور پر زمین پر موجود تھے, مگر غوث اعظم نے اللہ کے عشق میں, نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو ایسا گزارا کہ 1000 سال گزر گئے, آج بھی 11 کی شکل میں غوث اعظم کے اجالے زندہ ہیں. غریب نواز 950 سال گزر گئے, مگر آج بھی غریب نواز کی چھٹی زندہ ہے. یہ اولیاء کرام کوئی 100 سال, کوئی 200 سال, کوئی 500 سال جب تھے خدا کے عشق میں اپنی زندگی کو گزاری, اس زندگی کا فیضان
ऐसा मिला कि है तो बगदाद में गौसे आजम, है तो अजमेर में ख्वाजा अजमेरी, मगर उनकी यादों के चिराग चाहे बेंगलोर हो, चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गोशा हो, चाहे दुनिया का कोई इलाका हो, हर इलाके में उनकी यादों के चिराग रोशन है। तहे दिल से सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम और माशाअल्लाह ये प्रोग्राम क्योंकि बेंगलोर की सरजमीन क्या बल्कि आसपास के इलाकों में ये बात है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में जो हमारे हाजी अतीक भाई हैं, ये जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो मुहर्रम शरीफ का प्रोग्राम हो या 12वीं शब का प्रोग्राम हो, जैसा कि आज 11वीं शरीफ का प्रोग्राम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम करते हैं, बहुत शानदार इंतज़ाम करते हैं। सिर्फ तकरीर ही नहीं बल्कि लोगों को गौसे पाक का लंगर और गौसे पाक की न्याज भी खिलाकर यहाँ से वापस करते हैं। कौम आवाम की जो है लगातार इस सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से खिदमत की जा रही है। देखिए असल में दो चीज़ें हमेशा समझिए कि जो औलिया कराम का जो मिशन था वो है खिदमत खल्क, अहले बैत का जो मिशन था वो है खिदमत खल्क, गौसे आज़म पीरान पीर का जो मिशन था एजुकेशन। खुद गौसे आज़म फरमाते हैं दरसुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतुबन, कि मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। तो आप बताइए कि एजुकेशन वो सोर्स है कि जिससे कुतुबियत मिल जाती है। तो एजुकेशन के बिना ना तो सोसाइटी बन सकती है, एजुकेशन के बिना ना ही अच्छा समाज बन सकता है। तो एक अच्छे समाज के लिए तालीम की ज़रूरत है, इसीलिए सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन का क़याम हुआ ताकि कौम के बच्चे और बच्चियों को तालीम से आरास्ता किया जाए, ताकि एक अच्छा समाज, एक अच्छा माशरा और एक अच्छी सोसाइटी बन सके। आपने अपने दुआओं के दरमियान में भी जो है बिरादरान वतन के साथ इत्तेफाक की दुआ भी की। जी ये देखिए सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन जो है लगातार कोविड के अंदर बिना लिहाज से मज़हब लोगों की खिदमत करता रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो लोग भी इस धरती पर, चाहे हिंदुस्तान हो बल्कि मैं कहता हूँ धरती पर भी, अगर उनको बुज़ुर्गों से मोहब्बत है, बुज़ुर्गों से लगाव है, तो उनके अंदर इंसानियत होगी। इंसानियत इसलिए होगी कि हर बुज़ुर्ग का मिशन था मोहब्बत। गरीब नवाज़ यही फरमाते कि मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। तो जो टॉलरेंस थी, जो उनके वहाँ लब जो है कंडीशन के साथ नहीं होता, वहाँ लब अनकंडीशनल होता है। तो जहाँ पे अनकंडीशनल लब हो वहाँ समाज नहीं देखा जाता, वहाँ धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ ज़ात नहीं देखी जाती, वहाँ पे बरादरी नहीं देखी जाती, वहाँ पे सिर्फ मोहब्बत बांटी जाए ये देखा जाता है। जितने भी औलिया हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या पर्दा फरमाएं, इसके बावजूद जो दीगर मज़ाहिब के लोग उनसे फैज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जो है सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन भी जो है लोगों की खिदमत कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखिए कि अब इसमें आप खुद गौर कीजिए कि इसकी निस्बत हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से। अब वो करबला का दौर याद कीजिए और करबला से पहले का दौर याद कीजिए कि चादरें छीन ली गई, जुल्म के साथ शाम के दरबार में ले जाया गया। आज वही हज़रत ज़ैनब के नाम से लोगों के सरों में चादरें दी जा रही है। आज हज़रत ज़ैनब के नाम से लोगों को कपड़े बांटे जा रहे हैं, आज लोगों के सरों पर ओढ़नियाँ दी जा रही हैं। तो यकीनन हज़रत ज़ैनब का जो मकसद था वो मकसद सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खानकाह वारसिया से सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से हमारे अतीक अहमद साहब जो ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये पैगाम जा रहा है कि सारी दुनिया में जो है हम मशाइखीन हज़रात औलिया अल्लाह जो है सारी दुनिया में जो है मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। जैसा कि सरकार हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। हम सूफ़ियों ने सारी दुनिया को जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। उसी तरह आज जो है इस जश्न गौसे आज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफ़ियों का पैगाम जो है मोहब्बत का पैगाम
सारी दुनिया को दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो है इस तरह जो है महफिल जो है हमारे जो है अतीक अहमद साहब और हमारे जो है इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, जिसमें हम शिरकत फरमा कर हम समझते हैं कि जो है ऐसी महफिलों में हम जो है शिरकत करना जो है सवाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद गौस मुहियुद्दीन शाह कादरी है। मैं आस्ताने हज़रत दादा हयात मीर खलंदर का सज्जादा नशीन हूँ। ये मेरा पहला इजलास है अतीक अहमद साहब के पास। इससे पहले वो बहुत दावत दे चुके थे, मैं नहीं आ सका। इंशाअल्लाह ये जो 11वीं का जो सिलसिला शुरू हुआ है गौसुल आज़म दस्तगीर के हवाले से, और गौसुल आज़म दस्तगीर कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप कौन हो, वो सिर्फ़ मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। और हम जो सूफ़ियों को फॉलो करने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं, आज जो हालतें हिंदुस्तान में जो हो रही हैं, ये सबसे ज़्यादा ये है कि हम सब मुसलमानों की यही कोशिश रहना चाहिए कि हम नफ़रतों को हटाएं और मोहब्बतों को दुनिया में और हिंदुस्तान में ख़ास कर हिंदुस्तान में फैला कर हमारे बुज़ुर्गान दीन के नक्श क़दम पर चले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ख्वाजा सैयद सदमुद्दीन शाह उर्फ डॉक्टर अमानुल्लाह के हज़रत ख्वाजा सैयद शाह नसीरुद्दीन चिरायदी रहमतुल्लाह अलैह का नवासा हूँ मैं। वो ख़ानदान उसका हमारा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत पीरान पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के सेकेंड बेटे, उनसे हमारा ख़ानदान आया हुआ है। आज जो महफिल सजी हुई है हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के महफिल है, ये वैसी मुक़द्दस हस्ती है, रसूलुल्लाह के बाद इनका दर्जा आखिरी है दुनिया में। नबूवत इनसे क़ाइम है, विलायत इनसे क़ाइम है क़यामत तक। नबूवत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म हो गई है, नबूवत के बाद उनका अरसा इनको हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आया है। ये क़यामत तक जारी है इसका फ़ैज़ दो तरीक़े से है। एक हसद बग़ज़ को निकालना और मुसलमानों को एक करना, इत्तेहाद लाना, इत्तेफाक लाना, हमदर्दी लाना, मोहब्बत लाना, एक एक हमदर्द बनाना, इनका ये तरीक़ा है। दूसरा है अल्लाह की पहचान कराना। अल्लाह क्या है? अब हर जगह कोई जाता है किसी काम के लिए तो पहले देखता है क्या है, इसका कोई देने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, इसका मदद करने वाला कौन है। अल्लाह हम ना पाल रहा है, जिला रहा है, जान दिया है, जिस्म दिया है, लेकिन आशिक नहीं पहचाने हैं। इसकी पहचान कराने वाले ये हैं हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर। ये क़यामत तक रहेंगे और इनकी नायाबत में आने वाले को उन्होंने पुरसिश भी देंगे क़यामत में। मालूम है ये महफिल उनकी है, इसी वजह से हम यहाँ आए। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का ये 10वां 11वीं शरीफ का फंक्शन है, जो आज बहुत धूमधाम से मनाया गया था। हर साल की तरह हस्बे मामूल जो भी बच्चियाँ इस मदरसे में पढ़ के फ़ारिग होते हैं, अपने टेलरिंग क्लासेस के साथ या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के बाद या कंप्यूटर कोर्सेज़ के बाद या कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने के बाद उनको इधर सर्टिफिकेट्स और उनको तहनीत दी जाती है। उसमें अव्वल नंबर आने वालों को भी कई इनाम दिए जाते हैं। इसका करने का मकसद यही है कि लोगों में दीन की बेदारी पैदा करें और बाकी हुनर सीखने की भी बेदारी पैदा करें। मज़हब इस्लाम औरतों को रोकता नहीं है कि कुछ सिखाने के लिए। ये मदरसा सैयदा ज़ैनब ने दिखा दिया कि तमाम बच्चियाँ, औरतें जो घर में बैठी हैं या काम पे जा रही हैं, वो बाकायदा अपने मदरसे पे आके टेलरिंग सीखती है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखती है। और जिस तरह से हमने डिस्प्ले किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े सिए हैं, फैशनेबल ड्रेसेस जो उन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो सब हमने डिस्प्ले किए थे। ये अगर बच्चों को थोड़ा भी अगर उसका शऊर दिए, बैठ के घर में बेकार दिन गुजारने से आप अपने बच्चों को, अपने घर की माँ बहनों को मदरसे को भेजिए और इसका ट्रेनिंग दे के घर वालों को भी फ़ायदा है। और जो भी उससे कुछ बुटीक सेंटर्स खोलना चाहते हैं, काफ़ी लोग बुटीक सेंटर्स खोले हैं और घर का बोझ उठा रहे हैं, घर के लोग भी इसमें जमा हैं। मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है, जो मैं चाहता हूँ कि सारे दुनिया में इसका अमल हो।
यानी दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी जो है ज़हरा ज़ैनब फाउंडेशन की जानी चाहिए। ज़रूर दीनी तालीम और दुनियावी हुनर दोनों का ज़रूरी है। और ज़्यादातर बच्चे आज पढ़ लिए या नौकरी पे गए, कुरान से दूर हैं। आज देख सकते हैं कि 22 बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज़ की तरफ मुँह है, जिसका 1 पारा हुआ है, 2 पारा हुआ है। एक बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, मुसलसल 6-7 साल स्कूल को भी जा रहा है, रात को 8 से 9:30 तक हिफ्ज़ कर रहा है। आज उसके 22 पारे हिफ्ज़ हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई सिर्फ स्टडीज़ करना है कि मदरसा सैयद ज़ैनब में बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी है, लेकिन दीनी तालीम में कोई पीछे नहीं है। और मैंने धारापुरम एक जगह पे गया था कोयम्बतूर में, जहाँ पे शाम को जो बड़े उम्र वाले लड़के हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, वो शाम को आके सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं दीनी तालीम में। और कई लोग हैं जो कुरान अभी सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके मीडियम से इसको प्रचार करें। लोग जो अभी कुरान नहीं सीखे हैं या सीखे हैं, हिफ्ज़ नहीं किए हैं, वो बेदारी पैदा करें। शाम को टीवी देख के या व्हाट्सअप करके या चाय के दुकानों में बैठ के इधर जाके उधर जाके, आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे इधर आ रहे हैं, गरीब से गरीब तबके वाले भी हैं, अमीर से अमीर लोग भी हैं। कोई गरीब नहीं बोल सकता कि मेरा बच्चा नहीं भेज सकता, क्योंकि 70% हाँ बच्चे जो आ रहे हैं सब गरीब लोग हैं। और अमीर ये नहीं कह सकते कि हम नहीं भेज सकते, क्योंकि 30% ऐसे लोग हैं जो अच्छे खाते पीते मालदार लोग हैं, जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं कुरान मजीद का हिफ्ज़ करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये और जगह पे जहाँ पे मदरसे चल रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम करके हाफिज़ या कारी या आलिम बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो एक शोबा ओपन करें जो अपने मोहल्ले के लोगों को भी दीन की बेदारी पैदा करे। और जो लोग अल्लाह जिसे माल दौलत दिया है, वो भी इस तरह से एक सेंटर खोलें हर जगह पे, क्योंकि अब बेंगलुरु में ही ऑलमोस्ट 1 करोड़ की आबादी है, इसमें ऑलमोस्ट 20-25% मुसलमान हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने लाख की आबादी है। इसके लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से कितने फाउंडेशन खोलना पड़ेगा और कितना इन्वॉल्वमेंट करना, सिर्फ खोलने से नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत है। आप अपना टाइम भी दीजिए, वक्त भी दीजिए, तभी जाके इसको कामयाबी हासिल हो सकती है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक का नहीं, सारे हिंदुस्तान का एक वाहिद मदरसा है। आप तमाम देख चुके हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए, ख़ास और ख़ास कौम मिलत की खिदमत के लिए। करोना के वक्त आप देख चुके हैं, आप तमाम हमारे साथ रह चुके हैं। जब करोना आया तो ऐसा माहौल था कि लोग आधा लीटर दूध लेने के लिए बाहर नहीं जाते थे। ऐसे मौके पर जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन और बानी अल्लाह जती खामद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इनकी क़यादत में 25 लोगों की एक टीम है ना, सारे रियासत कर्नाटक में नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर हज़ारों का अनाज तकसीम किया, हज़ारों के लोगों के लिए अनाज तकसीम किया, पका हुआ खाना तकसीम किया, कपड़े तकसीम किए। और एक पैक में जो है एक पैक एक घर को दे रहे थे, इसमें 5 से 6 आदमी खा रहे थे। ऐसी खिदमत करदा एक इदारा है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन। मैं ये कह देना चाहता हूँ, कौम की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो उतर जाते हैं, इनको अल्लाह ताला गायब से मदद फरमा देता है। यह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक मिसाल है। देखिए, जो 25 लोग कोविड के अंदर काम कर रहे थे, 25 के 25 भी हिफाजत से आज अपनी सेहत याबी के हिफाजत से आज फिर मदरसे की खिदमत में उतर चुके हैं। इसी तरह अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सालाना मेडिकल कैंप्स, डेंटल कैंप्स, हर तरह के जो कौमी खिदमत वक्त ज़रूरत है। और जो है रूबरू प्रोग्राम हम देख रहे थे कि टेलरिंग क्लास के लिए लड़कियां आ रहे थे, हमारे कौम के फार्म भर्ती कर रहे थे। फार्म में लिखा हुआ था कि 40 साल की उम्र है, 40 पर 5 साल की है, 50 साल की है। एक कॉलम बताया गया था कि शादीशुदा है या बेशादीशुदा है। बहुत सारे हमारे कौम के लड़कियां 40 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई थी, बेशादीशुदा कॉलम में लिखा हुआ था। इस कॉलम को देखते हुए अल्लाह जती खामद साहब ने एक
ارادہ کیا کہ قوم کے لیے شادی رشتوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم نے ریاست آندھرا پردیش گئے اور ریاست دلی میں گئے, بہت جگہ جا کے اس کی تحقیق کر کے ایک بہت انوکھا پروگرام روبرو کو سامنے لایا. آج سارے ہندوستان میں روبرو سالانہ پروگرام ہوتا ہے. 25 سے 30 ہزار لوگ آتے ہی اپنے بیٹے لڑکے لڑکیوں کی شادی طے کرنے کے لیے. ماشاءاللہ آج بہت سارے رشتے آسانی سے طے ہو گئے ہیں. بروکروں سے تنگ آ کر, مداوتوں سے تنگ آ کر پریشان لوگ کی پریشانی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں دور ہو گئی ہے. یہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ ایسا کام اللہ تعالیٰ نے بنگلور کی سرزمین پر الحاج عتیق احمد صاحب کی سرپرستی میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہاتھوں لے رہا ہے. اور اسی طرح آپ کی خدمت میں آپ اس میڈیا کے ذریعے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے دروازے کھلے ہی. آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے ٹیلرنگ کلاسز رہے گی, کمپیوٹر کلاسز رہے گی, فیشن ڈیزائننگ رہے گی. دیکھیے ایک کپڑا سلانے کے لیے آج 800 سے 1000 روپے دینا پڑتا ہے. جن لڑکیوں نے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں ٹیلرنگ سیکھی ہے, آپ یہاں ڈسپلے دیکھ رہے تھے, 2-2 ہزار کے سلائی کے کپڑے آپ خود سی کر ڈسپلے کر رہے تھے. یہ قوم کے لیے ضروری ہے. ان پروگرام کو آپ کی خدمت میں ہم دے رہے ہیں. آپ تمام سے میڈیا لوگوں کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا کہ تمام محلوں کو اس کو بتا دیجئے. یہ تمام خدمات آپ کے لیے فری رہیں گے, مفت رہیں گے. جو بھی پروگرام سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ کے دماغ میں آئے گا, آپ کی خدمت میں الحاج عتیق احمد صاحب نے اس کو بالکل فری کر دیا ہے. انشاءاللہ تا قیامت تک یہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پروگرامز آپ کی خدمت میں فری رہیں گے. اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. دیکھیے یہ محفل سجی ہوئی ہے. ابھی حضرت سے بات کر رہا تھا, ہمیں امید بھی نہیں تھی. دیکھیے 11ویں شریف کی برکت, کرامات ایسے ہوتے ہی. یہاں پہ شادی تھی, 6:30 بجے تک شادی چل رہی تھی, جلوہ چل رہا تھا. مجھے تعجب ہو رہا تھا, عتیق صاحب فون کر رہے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں, 15-20 منٹ میں ساری محفل سج گئی. یہی کرامت ہے غوث پاک کی 11ویں شریف کی. آپ تمام اس کا فائز اٹھائیے اور اپنے خاص دعا میں خاص کر الحاج عتیق احمد صاحب کے لیے دعا کریے تاکہ قوم و ملت کی انسانیت کی اور بھرپور خدمت کر سکے.